She. Yes, Pukhachi. Okay, Pukhachi. Wherein the meaning of Kha means guest and Chi means here, but together the word Khachi means polite. So no need to be so polite. Pukhachi. Okay, Pukhachi. Either you can say the word Pushie or Pukhachi. Okay. Next, the last word of this lesson today we will do how to say bye-bye, goodbye. Okay. So there is only one way to say goodbye. There is no other way to say goodbye. Okay. So the word for goodbye is called as Zaijian. Okay. The word is Zaijian. Karan, can you repeat after me the word Zaijian? Zaijian. So the pronunciation of Z will be J with dot wala, बिंदी वाला जो हम दरवाजे पे बोलते हैं, and this J, the pronunciation of J will be J. So it will be Zai, and this will be Jian. Zai, and this is Jian. हिंदी में जो हम लिखते हैं, ठीक है? Zai Jian. Okay, Ritesh, can you say this word Zai Jian? It would be Zaijian. Zai Jian. Sahaj? Zaijian. Ma'am, Zaijian. Yes. Okay. So the meaning of Zai means again, and Jian means to see or to meet. So that's why the word Zaijian means see you again, as in bye bye. Okay. So when somebody says to you Zaijian, you will also say the same word, that is Zaijian. Okay. Now how to write this character Zaijian? I'll tell you. There is no story in Zaijian, so you have to actually learn with character the stroke orders. So first I'll tell you how to write the word Zai. So Zai will be written like, first you will make a sleeping line. Okay. Then you will make a box, half box with a curve like this. Then one more parallel line to the upper line, and a core line you will make which will cross the box, and then a standing line. Make sure, some people what they do the mistake, they will make like this. इसको लंबा खींच देते हैं. So this is wrong. Okay, and don't make it so big also. ऐसे भी नहीं बनाना. This is also wrong. So थोड़ा सा सुंदर सा type का you have to make it. पतला सा like this. Okay, so this is the character of Zai, which means again. And the character of Jian is also very easy. It's not difficult at all. So it will be a box जिसमें every side will be open. एक side open रहेगी नीचे की. And then one leg, it's like a leg coming out, और एक छोटी सी leg coming out. Okay. And again the mistake मैं बताती हूँ, people make like this. So this is wrong. इतना चौड़ा नहीं बनाना. You have to make it very small. Okay. So together I'll again draw the character of Zaijian, then you can copy. So tell me, Karan, will there be a change in tone here? Because both are fourth tone. Will there be a change in the tone? Remember the rule Yes, too? ma'am. Will there be a change in tone? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, the first word will be converted into second tone. Okay. Ritesh, will there be a change in tone? No, it happens only with poo. Yes, it happens only with poo. अगर मेरा poo के साथ next tone is also fourth tone, then only I will change. Here there is no poo. So इसमें they will not be changing the tone for any of those tones. So it will be pronounced like Zaijian, थोड़ा सा जोर से, because it's a fourth tone, so you have to put a pressure on both the tones. So it will be Zaijian, which means bye-bye or goodbye. Okay, Okay, you ma'am. can anything you want, you just write down the word Zaijian. Okay, any issue in writing, tell me. डाउट हो रहा है मुझे बार-बार, मैं पूछूं? हाँ जी. मैम जैसे कि आपने वर्ड बताया जाए, इसका मतलब है अगेन. तो Yes. अगर मुझे किसी को अगेन बोलना होगा तो कैन आई से वर्ड जाए? Yes, 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 definitely. ये आप HSK 3 में सीखोगे. When you want to say will buy it again or will go again, that time you will use the word zai. And JN वाला word भी you can use separately. Like I will go to the hospital to see him, or I will go to so and so place to see that person. There also you can use only the word JN to see. So they can be separated. मैम जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये पू ख ची, तो ख का मतलब बताया था गेस्ट. Yes. तो मुझे गेस्ट बोलना होगा तो कैन आई से ख? उसके लिए एक सफिक्स और लगाना पड़ेगा, पीपल का सफिक्स. वो मैं अभी इसी आज ही बताऊंगी मैं आपको सफिक्स. उसमें एक रन वर्ड होता है. रन का मतलब होता है पर्सन और पीपल. सो अगर मैं ख के साथ रन वर्ड लगा दूंगी, उसका मतलब हो जाएगा गेस्ट.
So सिर्फ अकेले ख नहीं लगा सकते, उसके साथ you have to add suffix. बट अगर आप डिक्शनरी में देखोगे और इफ यू गूगल करोगे कि ये ख का क्या मीनिंग आ रहा है, इट विल शो गेस्ट ओनली. बट वो अलग वर्ड, ओनली दैट सिंगल वर्ड यू कैन नॉट यूज टू एक्सप्रेस नाउन एज अ गेस्ट. हाँ वही थोड़ा इसीलिए में डाउट्स हो रहे हैं थोड़ा हाँ। गूगल की वजह से वो धीरे confuse धीरे हो हो, गूगल ज्यादा मत देखो अभी, आप इस स्टेज पे हो नहीं कि आप गूगल सर्च करो, कंफ्यूज हो जाओगे. नॉट नाइट. आफ्टर HSK 1 जब कंप्लीट हो जाएगा ना, देन यू कैन गूगल इट. Ma'am, done. Anyone left? Shall I move on? Okay. Okay, so this we have also done. This is a complete lesson. We have finished with this lesson. Okay, nothing is left in this lesson. Okay. Now we will move to lesson number 3. So abhi ka 1 or 2 lesson, it was very simple, just basic readings. They up in lesson number 3, actual Chinese will come. Like how will you introduce yourself? How will you tell that she is my teacher, I am a student, or I am Chinese, I am Indian. And in this lesson, from this lesson onwards, we are going to practice the listening one and jo mock test hote hain hamare lesson on 3 onwards. Okay. Okay. So lesson number 3 is Ni jiao shama means, which means what is your name? This is how you ask a person. Okay, Sahaj, what do you mean by the word ni? Can you see the lesson name in front of you? What do you mean by the word ni? Ma'am, what? Ni का मतलब क्या हुआ? This one. Knee. Ma'am, like it belongs to that knee how one. हाँ, same character. You can see the character. Now you can Ma'am, recognize the knee character. means you. Yes, ni means you. बाकी सारे characters it's unknown to you. So now I'll tell you what Yes, this jiao, shama, and means. Okay. So I'll start with chapter 3. You can take it out new page and you can write if you want. Okay. So the first word ni हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है. So I'm just writing for your knowledge only. So ni का मतलब होता है you. It is an informal way. जो कि we have learned in ni hao. Same. The same character. Next word we will going to say is the word jiao. Jiao. The pronunciation is j. So it will be ji and ao. Remember ji chi shi sound I told you. जी छी शी साउंड लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 साउंड्स Yes, ma'am. बताई थी. जे क्यू एक्स, उसमें मैंने आपको बताया था जे आई क्यू आई एक्स आई. सो ये जी होता है. सो दैट्स व्हाई जे आई की साउंड मैंने जी ही लिखी है. ओके. सो दैट इज जी एंड ए ओ की साउंड हो जाएगी. ए को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एज इन आ. एंड ओ को कैसे प्रोनाउंस करते थे? ओ. सो इट विल बिकम आओ. सो जी के साथ लगा दिया, इट विल बी jiao, and since it's the 4th tone, so you have to put pressure. So it will be jiao. Okay. Ritesh, how will you pronounce it? Tell me. We pronounce jiao. Jiao. Okay. Jiao. Sahaj? Jiao. Yes, Karan. Jiao. Jiao. Okay. Jiao. थोड़ा सा force. And this is very easy character to write it. इसमें क्या है? Okay. Who can tell me what is this character? ये मैंने बताया हुआ character. कौन सा character है ये? Just a square box. ये ख में आया था, नीचे मैंने बताया था what this character mean. Ma'am, guest. नहीं, गेस्ट का तो पूरा करेक्टर था. सिर्फ ये स्क्वायर बॉक्स मैंने, अब जैसे मैं दोबारा बता देती हूँ. दिस इज द फेस ऑफ अ पर्सन एंड दिस इज द माउथ. सो ये करेक्टर जो होता है, दिस इज द करेक्टर ऑफ माउथ. सबसे इजी करेक्टर है चाइनीज का. जैसे एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया विच बिकम्स अ माउथ. सो एक्चुअली में इफ यू से दिस वर्ड, हम माउथ को कैसे बोलते हैं, तो यू विल मेक दिस करेक्टर. ठीक है. सो दिस इज द करेक्टर ऑफ माउथ. सो आप माउथ का करेक्टर बनाओगे. और जैसे हम मैथ्स में 4 लिखते हैं, लाइक दिस वी राइट 4. सो जियाओ में व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल मेक वन करेक्टर लाइक दिस, एक थोड़ा सा स्लैंडिंग, देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. सो ये जो करेक्टर बन जाता है, सॉरी थोड़ा सा मेरे स्लो में गलती बन गई. इट विल बिकम लाइक दिस 1 एंड 2. सो ये हो जाएगा जैसे हम 4 लिखते हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, बस थोड़ा सा स्टाइल एंगल में लिखना है. यू हैव टू मेक इट लिटिल कर्व एंड देन अ लॉन्ग लाइन. So this character is the character of
Jiao. What do you mean by the word jiao? The meaning of jiao means to be called by, or you can say called as. फोन वाला कॉल नहीं, बुलाने वाला, कि मुझे इस नाम से बुलाया जाता है. So Chinese people don't say like कि मेरा नाम, बोलते हैं, there is another way, but this is the shortest way how to tell like my name is. So my name is will be called as I called by or called as and your name. Okay, first write this word jiao, then I'll tell you how to say your name, and then we'll learn how to ask the question. Write the word jiao, which means to be called by or called as. बुलाया जाता है के sense में. Ma'am, done. Okay. Everyone done? Shall I move on to next vocabulary? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, if I want to say, I am Preeti. Okay. So English में तो I am Preeti बोलते हैं, but Chinese people कैसे बोलते हैं? I called as Preeti. So अभी मैंने called as सीख लिया, प्रीति की तो प्रीति ही रहेगी. Now I want to learn the word I. So I or me को क्या बोलेंगे? Then you can tell your name in Chinese. The first basic expression you can say like my name is so and so. So I or me, it's one word in Chinese. I हो या me हो, मैं उसको one word से बोलूंगी, and that word is called as wo. It will be w and o. इसको 5 के साथ confuse मत कर देना. What is the number 5 in Chinese? Woohoo. Woo. Yes. So 5 को हम woo बोलते हैं and इसको हम wo बोलते हैं. This is also sometimes people they make a mistake कि वो wo को woo बोल देते हैं. So this is wo and 5 is woo. O and u का फर्क है. Okay. So wo means Chinese. Oh sorry, wo means I or me. और इसका जो राइटिंग है, अगेन वी डोंट हैव एनी स्टोरी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, शुरू में लगेगा, बट इट विल बी इजी फॉर यू लेटर ऑन. एंड दिस इज द मेन कैरेक्टर जो आपको सीखना ही सीखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल स्टार्ट विद आई और मी ओनली. सो वो कैसे लिखेंगे, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. ओके, देन आई विल टेल यू द स्ट्रोक ऑर्डर. सो पहले आई विल मेक अ स्लैंटिंग लाइन, एक ऊपर की तरफ स्लैंटिंग लाइन, देन वन स्लीपिंग लाइन, फिर एक जे की तरह बनाऊंगी, and then I'll make a cross like this, then one more cross उसके बीच में, and then a stroke. So ये पूरा character मेरा वो का character है. So I'll draw one by one for you to make it easy. Slanting line, then sleeping line, then J की तरह. One part is done. Now I have to work on other part. So sorry, एक stroke miss हो गया, एक और है, 7 strokes होते हैं. So this is like this, and then you will make one stroke. ठीक है, उसके बाद one part is done. Now I'll work on other part. I'll draw like this, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना दूंगी. उसके बाद I will draw like this. तो ये जो लाइन होगी, ये ऊपर से नीचे को बनानी है. ठीक है, आप नीचे से ऊपर मत बनाना, otherwise it will be wrong. तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी. And the last part is, उसमें आपको एक छोटा सा वो देना है. So make sure जब आप बनाओ, जो मिस्टेक मैं बता रही हूँ कॉमनली क्या होती है कि पीपल डू लाइक दिस, ऐसे ये ज्वाइन कर देते हैं, इसके और इसके बीच में गैप है, सो यू हैव टू कीप द गैप. ठीक है, सो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दोबारा बताती हूँ. दिस इज 1, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4, 5, 6 एंड दिस इज 7th one. शायद थोड़ा इजी हो जाए इससे. Okay, so this is how you make the character wo, which means I or me. तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा ये. Ma'am, done. Done? Ritesh and Sahaj, are you done doing? Done, ma'am. Okay. Now, Karan, can you translate now if I want to say I am Karan? How will you say in Chinese? Ma'am, it will be wo jiao Very karan. good. Very good. So you will say wo jiao Karan.
as in I am Karan or I called as Karan. अजीब लगता है called as, but this is how Chinese people say. So it will be 我 Jiao and Karan. You can change your name also. आप अपना Chinese name खुद से भी ढूंढ सकते हो, और you can, I can also help if you are really want to have your Chinese name. ठीक है, क्योंकि करण का आई थिंक मिल जाएगा. इफ यू ट्रांसलेट फ्रॉम गूगल तो आपको करण का ट्रांसलेशन मिल जाएगा. Okay, ma'am. So how, this is how you say like I am so and so. So Sahaj, how will you introduce yourself? How will you tell your name? मैम वो जियाओ सहज. Yes. Yes, Ritesh. वो जियाओ रितेश. Ritesh. Yes. Okay. You can write this sentence and you can write your name. I'm done. Anyone left? Yes. Sahaj and Ritesh, have you done? Okay. Shall I move on next? Now, if I want to say, what is your name? Okay. So if I want to say the question word, so if I want to say, हम बुक में थोड़ा जियाओ का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो एक्चुअली थोड़ा सा कंप्यूटराइज होता है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगता होगा. जैसे कि ये वर्ड है आप ये कह रहे हैं ना, जिया, इसमें मैंने ऐसे ही बनाया, माउथ का वो थोड़ा सा एंगल बनाते हैं ऐसे ना, जब आप देखोगे ना. सो इट इज लाइक दैट. सो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट सिंस इट्स अ प्रिंटेड, सो प्रिंटिंग में थोड़ा सा वो थोड़ा सा बॉक्स में एंगल नीचे बन. लाइन आ रही है, मतलब पता नहीं हम कौन लोग सा? जो कौन सी? बॉक्स है ना, माउथ शेप जिसमें माउथ कैरेक्टर आपने बताया, हाँ हाँ, उस नीचे लाइंस आ रही हैं बॉक्स में से, तो उस वजह से डाउट हो रहा है मुझे. गूगल लाइन भी किया मैंने. नहीं, लाइन मतलब कैसे? ये बॉक्स ही तो है, बॉक्स ही बनाना है आपको जियाओ में. तो ये वाला कह रहे हो आप कैरेक्टर? आप मेरे को स्क्रीन में देख पा रहे हो इसे? हाँ, तो ये तो बॉक्स ही है. मैंने बताया था ना, माउथ रेडिकल बनाना है तो स्क्वायर बॉक्स बनाना है. हाँ, अच्छा, थोड़ा आपने कैसे बनाया? एक मिनट, आप देखो, ये वाला है, बॉक्स बनाना है और 4 की तरह है ऑलमोस्ट. इसमें ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, दिस लाइन इज छोटी. कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? मैम बुक में ना बॉक्स का कैरेक्टर थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, इसलिए मुझे नहीं confusion नहीं, हो वो रही थी. एक्चुअली कंप्यूटराइज है इसीलिए. अदरवाइज जब आप हाथ से लिखोगे तो थोड़ा सा तो हल्का सा तो हिलता ही है. सो आप, क्योंकि हम स्केल लेके तो बैठेंगे नहीं, और वैसे भी जब चाइनीज लिखते हैं ना, तो आप देखोगे कई बार ना वो ऐसे भी लिखते हैं, तो ये और ये थोड़ा सा आपको बाहर निकलता हुआ मिलेगा. वो फॉन्ट और फॉन्ट में फर्क होता है. तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें बॉक्स गोल नहीं है या वैसा नहीं है. हाँ, यही ठीक डाउट है. था, मतलब एक्चुअली बुक से फॉन्ट का है ना. हाँ, हाँ, ठीक है. राइट. सो जो तभी मैं कह रही हूँ, जो करेक्टर प्रैक्टिस मेरी नोटबुक है ना, इफ यू कैन यूज दैट वन, दैट इज बेस्ट. तो उससे आपका मतलब जितना भी लिखने का है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज योर नेम नाउ वी आर डूइंग. ओके, सो हाउ विल यू आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, ये हम हिंदी की तरह पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, नॉट लाइक इन इंग्लिश कि हम पहले व्हाट लगाएंगे एंड दिस. सो द वे ऑफ आस्किंग, पहले मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ, फिर मैं आपको नेम और व्हाट का बताती हूँ मीनिंग क्या होता है. ओके, इट विल बी कॉल्ड एज यू कॉल्ड बाय व्हाट नेम. सो दिस इज हाउ यू आस्क द क्वेश्चन, यू कॉल्ड बाय व्हाट नेम. अब हम इसमें व्हाट सीखेंगे और नेम सीखेंगे. ठीक है, बिकॉज हमने यू ऑलरेडी लर्न कर लिया है, विच इज नी. कॉल्ड बाय हमें पता है, दैट इज जियाओ, बट वी डोंट नो हाउ टू से व्हाट एंड नेम.
सो मैं अब आपको बताती हूँ व्हाट को हम क्या बोलते हैं। सो व्हाट को हम चाइनीज में बोलते हैं शम्मा। इट इज SHEN एक वर्ड है और ME इट्स सेपरेट वर्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज शन, शन, एन और म, क्योंकि ME में ई की मैंने आपको बताई थी इट्स अ साउंड होती है। सो इट विल बिकम शम्मा, शम्मा। ओके, सो इट इज शन ma, शन ma. Okay, Karan, can you repeat this word? Shanma. Shanma. Okay, Sahaj. Shanma. Yes, Ritesh. Shanma. Yes. Okay, Shanma means what? So कैसे लिखेंगे? अब हमारा एक बॉक्स है क्योंकि दो करेक्टर से मिलकर एक करेक्टर बना है। सो मैं यहाँ पर आपको शन का मीनिंग बताऊंगी और यहाँ पर म का। सो शन के लिए कैन यू टेल मी व्हाट दिस करेक्टर इज? ये किसका करेक्टर है? Person can tell? standing. Yes, it's a person standing. और ये किस चीज का करेक्टर है? 10. Shoe. 10 का। ठीक है, तो ये हमारा शन का सेलेक्टेड करेक्टर बन गया पूरा। पर्सन स्टैंडिंग और 10 का करेक्टर मिलके शन का करेक्टर बन गया। एंड म कैसे लिखेंगे? दिस इज न्यू करेक्टर। सो आप इसमें दो एरोस स्लैंटिंग बनाएंगे। इट्स स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट है, थोड़ा सा मेरे से कर्व बन गया। एंड देन लाइक एन दिस एरो। सो शमा का मेरा कैसे बन जाएगा? अ पर्सन स्टैंडिंग 10 का, ये एक करेक्टर है शन का, और म का इट्स लाइक दिस। So this is a character of Shama, which means what in Chinese? क्या? ठीक है, it's a question word. You can write this word Shama. Ma'am, done. Yes, Sahaj, Ritesh, done. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So this is Shama means what. Next is now how to say name. So ये name word बहुत important है जब आप कभी वीजा भरोगे किसी वीजा फॉर्म चाइना एम्बेसी में जाके। So जो फॉर्म में लिखा होता है name, so उसमें आपको ये वर्ड दिख जाएगा तो you can understand कि हाँ यहाँ नाम लिखना है। So name को हम चाइनीज में बोलते हैं मींग। Okay, so it will be मींग and this is Z की प्रोनाउंसिएशन ज के नीचे बिंदी होती है तो इट विल नॉट बिकम Z। ये स्पेशल 7 केसेस में आएगा, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सो इट विल नॉट बी प्रोनाउंस लाइक Z। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसको Z पढ़ने में बिकॉज आई की साउंड हमने ई पढ़ी है, बट ये एक्सेप्शन है। सो इट विल बी Z। सो मींस, जैसे हमने 4 पढ़ा था ना, 4 को क्या बोलते हैं हम? कैन समबडी टेल मी हाउ टू से 4? Sir. स। उसमें मैंने आपको बताया था इसको सी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम स पढ़ते हैं। सेम यही वाला रूल इसी में भी अप्लाई होता है। सो कुछ ऐसे 3-4 वर्ड्स हैं जिसमें सी आई आ जाता है, एस आई आ जाता है, आर आई आ जाता है, और एक और है वाई आई ई जो मैंने आपको बताया था। सो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें थोड़ी सी साउंड वैसी नहीं आती जो हमने सीखी है। सो दिस इज वन मोर लाइक दैट। सो मींस का मतलब होता है नेम। करण, कैन यू से दिस वर्ड मींस? Mings. यस सहज? Means. यस रितेश, से द वर्ड। Means. यस, मींस विच मींस नेम। अब मींग का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको नेम ही नजर आएगा। ओके, सो इफ यू सी द वर्ड मींग इट्स नेम ओनली। बट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ज? ज का मतलब क्या होता है? ज का मतलब होता है वर्ड्स या करेक्टर्स। आगे जाके जब आप पढ़ोगे ना चाइनीज करेक्टर्स, तब आप ये वर्ड यूज करोगे मींस, तो ये ज वर्ड दोबारा से रिपीट जरूर होगा। सो मींस का मतलब होता है नाम का करेक्टर या नाम वर्ड इन द सेंस मींस एज इन नेम। ओके, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? अगेन मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी, पहले मैं करेक्टर लिख के बताती हूँ, फिर मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। So this is मींग और ज, क्योंकि दो अलग अलग करेक्टर्स हैं, so I'll make 2 boxes
इसके लिए फर्स्ट आई मेक अ स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन बना दी, एंड देन एक हुक की तरह बना दिया मैंने, ऐसे हुक की तरह। देन आई मेक वन स्मॉल डॉट हेयर, और उसके नीचे अगेन दिस करेक्टर, हु कैन टेल मी नाउ दिस करेक्टर, क्या करेक्टर है ये स्क्वायर बॉक्स? मैम माउथ। माउथ का रेडिकल, ठीक है। सो ये तो मीन का करेक्टर हो गया। ज में ये किस चीज का करेक्टर है? व्हाट इज दिस करेक्टर, हु कैन टेल मी? ये मैंने आपको Person बताया sleep. था, इट्स अ पर्सन स्लीपिंग। ये मैंने बताया था पर्सन स्लीपिंग, बट इसके ऊपर अगर मैं ये स्ट्रोक लगा दूं कि ये किस चीज का करेक्टर हो जाएगा? ये हमने पुखची में सीखा था, ख के रेडिकल में। आई ड्रॉ द पिक्चर। किस चीज का करेक्टर है ये? Roof. रूफ, ठीक है। सो दिस इज द करेक्टर ऑफ रूफ। अगर मैं इसमें ये स्ट्रोक ना लगाऊं, देन इट विल बिकम अ करेक्टर ऑफ पर्सन स्लीपिंग। तो रूफ का रेडिकल बनाएंगे, और उसके नीचे व्हाट इज दिस करेक्टर, हु कैन टेल मी? ये जो नीचे मैंने अभी बनाया, ब्लू में बना देती हूँ मैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैम अ बेबी। यस, अ चाइल्ड, जो हमने नी हाउ में किया था, चाइल्ड या सन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ हर एक करेक्टर का मतलब क्या है। इसमें आप ये वाला करेक्टर तो जान ही गए हो, जो मैंने ब्लू में मार्क किया है कि माउथ का रेडिकल और सन का और रूफ का। द ओनली करेक्टर जो आपको जानना है दैट इज ये वाला करेक्टर। इसका मतलब क्या है? इस करेक्टर का मतलब होता है सनसेट, ठीक है। सनसेट का करेक्टर होता है। कैसे? जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, उसमें से सनसेट हो रहा है, तो क्या बना देंगे, एक ये माउंटेन की एक एंगल बना देंगे, एंड देन विल मेक लाइक दिस। इमेजिनेशन है जस्ट, आपको जिस तरीके से आपसे याद हो जाए। तो ये एक माउंटेन का एक एंगल बना देंगे, और यहाँ पर सूरज डूब रहा है छोटा सा। सो दिस विल बिकम अ सनसेट रेडिकल। ओके, सो अब आप कैसे स्टोरी याद कर सकते हो? मीन्स, मीन्स मतलब किसी को, किसी का नाम। तो जैसे शाम हो गई है, सनसेट हो गई है, आप किसी को मुंह से आवाज लगा रहे हो, उसका नाम बुला रहे हो, और जिसको बुला रहे हो वो रूफ के नीचे एक बच्चा बैठ के सो रहा है। रूफ है और उसके नीचे वो बैठा हुआ। सनसेट हो गई है, यू आर कॉलिंग समबडी एंड दैट पर्सन इज सिटिंग अंडर द रूफ, द बच्चा। सो ऐसे आप याद कर सकते हो मीन्स। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा याद करना। ओके, you can write this word means, which means name in Chinese. मैम जैसे सनसेट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सनसेट ये पे भी लिख सनसेट सकते का, हैं। हाँ, सनसेट के लिए, मतलब सनसेट के लिए और भी वर्ड्स होते हैं, बट दिस इज, अगर मैं आपको बोलूं कि चाइनीज में बेसिक करेक्टर्स, एक बेसिक करेक्टर्स होते हैं रेडिकल्स जिसको हम कहते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो एक्चुअली बड़े वाले करेक्टर्स की। तो अगर उसमें कोई कहेगा ना कि ये करेक्टर किसका, अगर आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा ये सनसेट का करेक्टर है। तो चाइनीज में एक्चुअली एक तो जो होता है जो हम प्रॉपर लिखते हैं ट्रांसलेशन में, और एक होते हैं जस्ट वन बाय वर्ड, हम उसका बताते हैं कि इसको ज्वाइन इसके साथ करोगे तो ये करेक्टर बन जाएगा। जैसे सनसेट के साथ में अगर एक और सनसेट मिला दूं, ये एक नया करेक्टर बन जाएगा। इस करेक्टर का मतलब हो जाएगा अ लॉट। तो ये आप आगे सीखोगे। सो ये बेसिक करेक्टर्स होते हैं हमारे। जैसे मैं कैसे बताऊं कि एक्चुअली हिंदी में भी नहीं होते हमारे। हाँ, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना, ये अ है और ये आ है, बट ये अ अगर हम यूज करें क ल, इसमें अ भी तो शामिल है ना। सो ये ऐसे उसी तरीके से काम करता है चाइनीज में। कई बार ये सिंगल भी यूज हो जाते हैं, कई बार इसको किसी के साथ भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। मैम डन। बाकी ने कर ली। यस Yes, ma'am. सहज एंड रितेश। ओके, नाउ रितेश आप बताइए, You called by what name? It means what is your name? How will you translate now? आपको सारे words पता है, you know, you called by भी पता है, what भी पता है, name भी पता है, बताओ। वो अब you से शुरू हो रहा है तो you को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तुम्हारा या आपका। नी नी। देन जियाओ
च्याओ फोर्थ टोन है तो फोर्थ देना है, ठीक है। नी च्याओ, देन शम शम्मा, and then name is मिंग्स मीन्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज योर नेम। सो रितेश, कैन यू से दिस नेम वेरी क्विकली, थोड़ा सा तेज आवाज में और जल्दी, फ्लुएंसी से थोड़ा। नी जियाओ शम शम मिंग्स अब एक बार मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करना। नी च्याओ शमा मीन्स, नी च्याओ शमा मीन्स, बोलिए। नी जियाओ शम मिंग्स यस सहज, बोलिए। Nija Shama means वेरी गुड। करण। Nijia Shenmu Mingze. Okay. Sahaj, now you ask this question to Ritesh and Ritesh will answer. Then Ritesh will ask Karan and Karan will answer. Okay. Start karo Sahaj. Ask. ma'am, I should ask what is your name? Yes, you ask. No, you called by what name? नहीं नहीं, यही तरीका है, वो तो मैंने आपको वैसे ट्रांसलेशन बताई है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। Okay, ma'am. So you ask Ritesh his name and he will reply. Nija Shama means Yes, Ritesh, answer. वो नहीं है, मैंने बताया था ना, it's वो। वो जियाओ रितेश Very good. Okay, Ritesh, now you ask Karan the same question. नी जियाओ शम मिंग्स Means. मिंग्स Yes, Karan, reply. Wo Jia Karan. Karan asked this question to Sahaj. Nijia Shenmu Mingze. Yes, Sahaj. Vojio Sahaj. Yes, watch out, Sahaj. Okay, so this is how you ask the question and this is how you reply. Okay. Right. एक आपको सॉन्ग दिखाती हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाओगे इसके। Is it audible? Ni hao, 我叫天，再见，再见，再见。你好，我叫天，再见，再见，再见。你好，我叫天，再见，再见，再见。你好，我叫天，再见，再见，再见。你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你好，我叫天，再见，再见，再见。你好，我叫天，再见，再见，再见。
思，你叫什么名字？你好，你好，我叫天。你好，你好，我叫天。再见，再见，再见，再见。再见，再见。 अभी आप इसमें देख रहे होगे कई कैरेक्टर्स में ना, अगर आपने कैरेक्टर्स पे नोटिस किया होगा, ये कैरेक्टर देखो जीएन, मैंने ऐसा नहीं सिखाया आपको, राइट? यू कैन सी दिस जीएन। तो मैंने ऐसा इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि ये ट्रेडिशनल चाइनीज है, हम सिंप्लीफाइड चाइनीज कर रहे हैं, हम मैंड्रिन सीख रहे हैं। ये वाली चाइनीज आपकी बेसिकली ताइवान में बोली जाती है, वो अभी भी ओल्ड चाइनीज यूज करते हैं कैरेक्टर्स लिखने में। बोलने में उनका सेम स्टाइल रहता है, बट लिखने में उनके कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो बेसिकली चाइनीज भी दो टाइप की होती है, एक सिंप्लीफाइड और एक ट्रेडिशनल चाइनीज। तो सिंप्लीफाइड चाइनीज का नेम है मैंड्रिन, जो कि एक बिजनेस चाइनीज है। ट्रेडिशनल चाइनीज ताइवान और हांगकांग में बोली जाती है। और एक और डायलेक्ट भी होता है कैंटोनीज, जो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। सो कैंटोनीज इससे भी ज्यादा लिखने में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 टोन्स होती हैं, कैंटोनीज में जो होती है उसमें अराउंड 6 के आसपास टोन्स होती हैं, तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हम सिंप्लीफाइड पढ़ रहे हैं। अगर आपको कई बार लगे कि ये कैरेक्टर गूगल में कैसा आ रहा है, कभी कभार आप गूगल सर्च करोगे तो आप उसमें चाइनीज लिखते हो तो 2 टाइप की शो करती है, सिंप्लीफाइड और ट्रेडिशनल। सो ऑलवेज सिंप्लीफाइड चूज करना, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। तो ये सॉन्ग आपको पूरा समझ आ गया होगा कि ये क्या सॉन्ग था, क्योंकि हमने सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं इसके। ओके। जूम मीटिंग 1 मिनट में ओवर होने वाली है, सो मैं इसको एंड कर देती हूँ। आप प्लीज उसको दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है? 1 मिनट प्लीज ज्वाइन अगेन। आई जस्ट